خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ پاکستان پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص پنجاب حکومت کے اپنے ہی اندر بیٹھے گندی مچھلیاں جو ہیں وہ اس حکومت کے چلتے چلاتے نظام کو، جس میں بے تحاشا لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ بھی ہو رہا ہے، اس کے تابوت میں کیل ٹھونکنے پر مصروف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا، ایک مہینہ تقریباً ہو چکا ہمیں اس ایشو کو ریز کیے ہوئے، جس میں ہم نے ایک گندی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو جس نے گندا کیا ہوا ہے وہ نکال کر پورے نظام کے سامنے رکھی۔ نام اس کا حسنین گھمن بتایا جاتا ہے۔ الزامات اس پر بہت سنگین ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس سسٹم کے ساتھ مل کر جو مینوپولیٹ کرنا چاہتا ہے، مسلم لیگ نون کے نام کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتے ہوئے بے تحاشا لوگوں کو یہ لوٹ چکا ہوا ہے۔ ہم اس چیز پر قائل ہیں کہ اگر رشوت لینے والا کوئی نیک اچھا نہیں ہے تو رشوت دینے والا بھی اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مجموعی معاملے کو دیکھتے ہوئے، ایک پورے سسٹم کو دیکھتے ہوئے، وی بلیو کہ حکومت کی ذمہ داری اولین ہے، زیادہ احسن ہے۔ میرے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں، ان کو آپ نے پہلے بھی اسکرین پر دیکھ رکھا ہوگا، آج پھر یہ ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں، اور دیر از اے ریزن کہ بدقسمتی سے نئے زخم سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حسنین گھمن اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو اعلیٰ سیاستدان ہیں مرکزی نوعیت کے، ان کے دائیں بائیں موجود ان کا سٹاف، خاص طور پر ان کی مبینہ بدبختیوں کے نتیجے میں ایک جانب 180H پاکستان مسلم لیگ نون کا مرکزی دفتر اور اس کے ساتھ ساتھ کانا کا دفتر نصیر آباد کا جو دفتر ہے وہ بھی مرکزی دفتر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور کھوکھر برادران اس کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب جگ جانتا ہے کہ حسنین گھمن کون ہے اور وہ مبینہ طور پر کیا کر رہا ہے۔ جن کو پتا ہونا چاہیے تھا صرف وہی نہیں جانتے ہیں۔ کچھ اور بیماریاں آ گئی ہیں، تشخیص، علاج ایک ہی حکیم کے پاس ہے، اور وہ حکیم جو ہے وہ 180H والا ہے۔ آئی ایم ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لگنے والی چوٹ کی جو تکلیف 180H میں بیٹھے ہوئے شخص کو ہو سکتی ہے وہ کسی نو نہیں ہو سکتی۔ باقی سب اپنے مفادات کے چکر میں سمن بکمن والی کہانی کر کے بیٹھے ہوئے، اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ ہاں، ایک ہیرو ابھر کر آئے ہے جس کا نام عمران نذیر ہے، وزیر ہے پنجاب حکومت میں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ واقعی ہی ہیرا بن کے سامنے آیا ہے، and he have proved it۔ جو معاملہ سامنے آیا اور وہ مقدمات، وہ پرچے جو اس کے خلاف پولیس دینا نہیں چاہتی تھی، ایک شخص کے آنے سے وہ پرچے ہو گئے، اور اس وقت ہماری اطلاعات ہیں کہ حسنین گھمن کا ایک انتہائی قریبی رشتہ جو ہے، انتہائی یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے، وہ حراست میں ہے، اور حسنین گھمن جو ہے اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہمیں پتا چلا ہے کہ رپورٹڈلی پولیس اس معاملے کو اب سیریس لے رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مزاج بخیر سے؟ جی اللہ کا شکر۔ السلام علیکم حضرت، اپنے نام بتا دیجیے۔ میرا نام محمد شہزاد ہے۔ محمد شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ایک پروگرام آلریڈی کر چکے ہیں جی، جس میں آپ نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں ثبوتوں کے ساتھ لگائے تھے، جی، اور اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے الزامات کے بعد عمران نذیر سامنے آئے تھے، ان کا بہت شکریہ۔ وہ ہم آپ سے علیحدہ بھی سمجھتے ہیں۔ اور بھائی جان، جہاں تک آپ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے لوگوں کا بیڑا بو دیا، تسی لوکاں دا بیڑا ہی غرق کیتا ہے، اللہ ہن اے بیڑے بچا لوے۔ آپ نے یہاں تک کہ اپنی فیملیز کا بھی بیڑا بو دیا، بندے پھڑ پھڑ کے لیا کے دے کے تھوڑے موقف دے مطابق حسنین کو منو پیسے دیواندے رہے جے، اللہ خیر کرے۔
अच्छा सर, गुज़श्ता प्रोग्राम और उसके बाद के हालात, वाक़यात, असबाब आगाह फरमाइए, क्या हुआ? सर ईद से पहले 16 तारीख को मैंने थाना नसीराबाद में दरख्वास्त दी थी कि जी इस तरह सरदार हसनैन अली घुमन है, उसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड ये बताएं? वही हॉस्पिटल का टेंडर लेके देना था, मेयो अस्पताल के आय वार्ड की डिमोलिश करने का टेंडर लेके देना था और उसका सारा माल असबाब, और उसके बदले में कितने पैसे लिए थे आपसे? 15 लाख रुपए। और उसमें इमरान नजीर साहब के हवाले हाँ, से जी, एक फजूल गोई हुई, जी बिल्कुल, जो इल्जामात थे और उसने आपको कहानियां सुनाई, लेकिन इमरान नजीर साहब ने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा दिया। अब उस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ वो बताएं। उसके बाद वो 16 तारीख की दरख्वास्त दी हुई थी, ठीक है, ख्वाजा साहब की मेहरबानी है, 29 तारीख को ख्वाजा साहब ने कहीं कॉल की है, पता नहीं किन को की है, उनकी वजह से हमारा भी पर्चा जो है ना वो उस दिन हुआ 14 दिन के बाद। अच्छा, ये तो ख्वाजा साहब की मेहरबानी है, बाकी भी ठीक है, बाकी भी इदारे यानी कि मिनिस्टर हैं, तिनके का सारा ही है, ठीक है, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं क्या पकड़ के बैठे, ये उसका पुराना रिकॉर्ड है जो पर्चे इसका हसनैन अली घुमन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो है ही है। नसीराबाद टाउनशिप, नसीराबाद सिटी, दुनियापुर, फिरोजवाला, गालिब मार्केट, नसीराबाद 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 जी। अच्छा जी, ये आपके हैं? ये FIR हैं जो हमारी हुई हैं और ख्वाजा साहब की। अच्छा, ये अब वाली FIR जी। अच्छा जी, आउटपुट क्या है? उसके बाद जब ये मैं प्रोग्राम करके गया हूँ, अगले दिन उसका भाई आ जाता है नसीराबाद स्टॉप पे, जिसके मेरे भाई हसनैन अली घुमन का। क्या नाम है इसका? हसन जी। अच्छा जी। मेरे पास 2 गवाह भी मौजूद है जो मेरे साथ खड़े हुए थे। उसने कहा जी मैं अब तुझे ना हम लोग मरवा देंगे। हैं जी। हसनैन घुमन का भाई हसन जी क्या कहता है कि जी हम लोगों ने आपको जान से मरवाना है, तू जो इंटरव्यू दे है ना जाके, अब तेरी खैर नहीं है। उसके बाद मैं अगले दिन ही दरख्वास्त दे के आया हूँ जो अभी तक थाना नसीराबाद के अंदर पड़ी हुई है। उससे पहले मैंने 18 तारीख को दी थी, ठीक है, कि जी इस तरह मुझे थ्रेट कर रहे हैं, तो मैं माड़ा बंदा हूँ भाई, मुझे कम से कम और कुछ नहीं, ये उसके खिलाफ एक पर्चा दे के उसको बुला लो कि भाई क्यों उसको तंग कर रहा है, ऊपर से आप लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, ऊपर से आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। वो अभी तक इवन के फैसल कामरान साहब के पास गए, उन्होंने मार्क की। आप गए थे? जी मैं गया था। DSP है मलक सरवर अवान साहब, गार्डन टाउन में बैठते हैं, मैं उनके पास पेश हुआ, उनके पास गया हूँ, उन्होंने कहा जी आप वो उन गवाह को लेके आए, उनका ID कार्ड नंबर लिखें, वो भी लिख के मैं कल फिर दोबारा नसीराबाद थाने में पेश हुआ हूँ। मुझे उन्होंने कहा जी ये रख दें इधर जी। किने के? मुंशी है वहाँ पे मंशा। अच्छा, उन्हें की क्या? ये रख दे इधर। अच्छा ठीक है, कोई यानी कि वो एक्शन नहीं ले रही पुलिस। नहीं, आप फ्रंट डेस्क पे नहीं गए? वो जाने ही नहीं देते, वो कहते जी पहले उनसे पूछें। भाई फ्रंट डेस्क पे आपने जाके दरखास्त दी? भाई वो कहते गए हैं, उन्होंने कहा जी आप पहले फ्रंट डेस्क वाले कहते जी आप पहले जाएं मुंशी के पास, या SHO साहब आएंगे, वो देखेंगे, वो फिर करेंगे। SHO साहब कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। हम लोग जाते हैं उनके पास, वो कहते जी आपको इतला है तो आप बता दें कहाँ पे वो बैठे हुए, फिर हमारे कार्ड बना दे पुलिस के। IG साहब हमारे ये कहती है कि अगर आपको इतला है कि हसनैन घुमन कहाँ पे है तो आप हमें बता दें, तो फिर हमें सीधी तरह हमें भी जो है ना वो कार्ड बना दे, हम लोग जाके उसको ढूंढ लेते हैं। ऐसे हम लोग जाएंगे तो हमें कोई कहेगा जी ये कुछ चोर है या पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अल्लाह अपना अता फरमाए, अल्लाह ताला हिदायत दे। मुझे इन चीज़ों से शर्मिंदगी और माजरत करनी पड़ती है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक खातून जो काम करना चाहती है जी, इतना पथेटिक निज़ाम है जी कि उन्होंने उसको क्लच किया हुआ है जी। बहरहाल अल्लाह आसानी करे। अच्छा जी, अभी आपने मुझे कुछ चीज़ें सुनाई थी, वो क्या हैं वो बताएं। सबसे पहले तो सर ये देखें, ये रेड प्लेट यहाँ तो किसी जर्नल को ला होती है, ऐसे ही दिखाएं क्या है रेड प्लेट? ये तो एम्बेसीज की होती है। यहाँ एम्बेसीज को होती है, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को तो होती है ना। ये सरदार हसनैन अली घुमन साहब लगा के फिरते रहे। वाह भाई वाह। LE 147995 पंजाब। अच्छा जी, ये साहब अंदर बैठे हुए हैं, घुमन साहब तशरीफ फरमाए। जी 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 जी, आगे से स्माइल भी दे रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो रेड नंबर प्लेट में बैठे हुए हैं। हाँ भाई वाह, टॉरते हैं सर।
सर मजा तो आ रहा है, जी जी है ना? जब पूरा निजाम आपके वालिद साहब का मुलाजिम बन के बैठा ऐसे ही हो है। तो सर फिर मजा तो लेना बनता है। ये सरदार हसनैन अली घुमन साहब हैं जी। ये गार्ड्स कौन है? ये इसके गार्ड्स हैं सरदार साहब के। अच्छा जी, सरदार साहब फिनांस सेक्रेटरी थे ना लाहौर के, और ऊपर से वो जो किसके फाइनेंस सेक्रेटरी थे? ये मलक सैफ साहब के, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी जी। मैं फिनांस खुदा का नाम लें, वो खोकर पैलेस वाले कहते हैं कि हमारा उससे ताल्लुक ही नहीं है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। लेकिन वो बना के बैठा हुआ है। सुनाई, ये क्या बात कर रहे हैं? मलिक सैफ खोखर साहब का फाइनेंस सेक्रेटरी जी, फिनांस सेक्रेटरी हूँ लाहौर का, सदर तो वही है ना, तो जाहिर सी बात है। दिखाएं, ले सर ये एक मिनट, एक सेकंड, ये क्या है जी? ये 26 तारीख को इसने पैसे वापस देने थे सरदार हसनैन। अगर नौकरियों पे नहीं लगते या वो टेंडर नहीं होता, यानी कि वो नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके पैसे वापस दे रहा हूँ। अच्छा जी, एक ये जनाब सुनते हैं जी। वो कह रहे हैं जी इसकी गारंटी कौन देगा? अब गारंटी भी तो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ तो इनके वालिद साहब कह दें, कोई वो बैठ गया, मैं कह दें कि हाँ जी हसनैन गुमन खुद अपनी गारंटी है। हसनैन गुमन अपनी गारंटी है फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर का। इस तो ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ 10-10 ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो चोरी फिर बाद दे ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-10 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੂਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਜ ਸਾਹਿਬ और सर जो जिन्होंने धरने दिए उनमें से अद्धे तो इस टाइम थाने में, अद्धे इस टाइम सीसीडी के खोल है, वो छोड़ मामला था। और जने उसने आधी राती रखियां सी चीजें। ਜੋਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। सर मैं आपके साथ तो सियासत खेल ही नहीं रहा। मैं जुनेद साहब वो कह रहे जी 1 महीने का टाइम दे, अगर नहीं काम होगा तो पैसे वापस कर। ऐसे उन्होंने वालिद साहब भी बैठे, मामू भी बैठे ने, तो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਵਾਂ? ये हसनैन गुमन साहब तो अपने आप को फाइनेंस सेक्रेटरी बता रहे हैं जी और मुस्लिम लीग नून का जी, फिनांस सैफ साहब का जी, मलिक सैफ साहब का इसमें, लेकिन उसने मलिक सैफ का नाम ही लिया। लेकिन वो कहता यही था। हाँ, मैंने पहले भी मलिक सैफ साहब से राब्ता करवाएं जी। आमिर साहब, प्रोड्यूसर साहब, मलिक सैफ साहब से राब्ता करवाएं। सर हम यहीं से ही मलिक साहब से राब्ता करते हैं, ठीक है, हम कंफर्म करते हैं कि क्या वो उनका फाइनेंस सेक्रेटरी हसनैन घुमन नाम का कोई बंदा है, रहा है, वो किसी को जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही है सर। देखिए हमें, मैं तो बेसिकली सैफ साहब को, हमें ये भी नहीं पता ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या सीन है, हमें तो वही कहानियां सुनाता है। कहानियां उसने सुनाई। चले जी, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। मियां इमरान अरशद अर्ज कर रहे हैं जी, की हाल जी? ठीक हो? जी जी, खैरियत, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन गल कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मलिक सैफ साहब ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਲਕ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ कौन साहब गल कर रहे हो? मैं रफाकत बोल रहा हूं। अच्छा, रफाकत भाई की हाल जी? घर बार खैरियत है, सेहत अच्छी है? जी जी, अल्लाह दा करम जी। रफाकत भाई ਤੁਸੀਂ मलिक साहब ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋ? हाँ जी। अच्छा, की ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भाई? मैं बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ। अच्छा, असिस्ट कर ਦਿਓ। रफाकत भाई थोड़ी रहनुमाई करो। ਇਹ ਹਸਨੈਨ ਘੁਮਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੈ? नहीं कोई नहीं। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी नहीं जानते जिस वक्त। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਜੀ, ਨੀਓ ਟੀਵੀ ਤੋਂ।
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। रफाकत साहब थे जी, एंड ही इज स्टाफ ऑफ मलिक सैफ साहब। अब तो वो हूँ तो थोड़े सामने मैं गल भी की है कि रफाकत साहब कह रहे हैं कोई जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं। बस अब उनकी मर्जी है, वो नहीं जानते या वो होगा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई भी उसको जानता हो। यानी वो नौसर बात, अच्छा वैसे ये बात ना करें, हाँ ये बात ना करें, क्योंकि नहीं, उसकी वीडियो मैं एक चीज पे हैरान हूँ, अजीब ही है, एक चीज पे हैरान हूँ हाँ कि मियां नुमान साहब ने अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया। 22 में इलेक्शन हुए, 18 में हुए, 25 में हुए, तीनों में वो कोऑर्डिनेटर था। ये बात कंफर्म है, सदका है। मैं कहता हूँ मैं इस चीज पे जहां पे मर्जी आप मेरे से कसम ले लें, आप साथ रहे हैं? मैं साथ रहा हूँ। ये 25 में भी, 18 में भी, 18 में बल्कि मैंने इससे कहा, मेरा एक मियां दोस्त नुमान साहब से बात करवाएं, नंबर है आपके पास? नहीं, मेरा उनसे कोई, मियां नुमान साहब का नंबर तलाश करें भाईजान, आमिर साहब। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब मियां नुमान साहब से राब्ता करवाएं। ठीक है। अच्छा जी, 2018 में मैंने इससे कहा कि यार इस तरह मेरा एक दोस्त है, उसने एमपीए के जो है ना कागज जमा करवाए हैं, तो वो उसका वोट बैंक भी अच्छा है नून लीग के। तो मैंने कहा यार वो मियाँ साहब के लिए ना थोड़ा सा वो मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि वो आज़ाद खड़ा होगा। तो आप इस तरह करो, आप मियाँ साहब को बुलाओ, इसके साथ एक राजा कफ़ायतुल्लाह, वो भी इनका कोऑर्डिनेटर था मियाँ साहब का, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे ही होते थे, हसनैन अली राजा कफ़ायतुल्लाह। अच्छा जी, ठीक है। मैंने इसको कहा, मैं कि यार मियाँ साहब को बुला, उनके साथ इनकी मीटिंग करवा दे, ताकि वो जो है ना, क्योंकि वो हम लोग तो पहले ही मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको बुलाएं तो हम लोग इनकी ना सिटिंग करवा दें। जाहिर सी बात है, अब मेरा मियाँ साहब फ़ोन नहीं उठाना पसंद करेंगे, आप मुझे नंबर दें, वो मियाँ साहब फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। फ़ोन तो उसका ही उठाएंगे ना जिसका नंबर सेफ होगा। अच्छा जी। इस इलेक्शनों में भी मियाँ साहब ने कुर्सियाँ मंगवा ली, कोई हल की, जो ये 25 में हुए हैं। इसके पास 94 और 94 और 95 ये 2 यूसीए मियाँ साहब ने इसको दी हुई थी कोऑर्डिनेट के लिए जी। 94 और 95 का कोऑर्डिनेट जी, था। वहाँ का चेयरमैन है मियाँ शहजाद। अच्छा जी, ठीक है। हम लोग उसको ऑफिस में गए, वहाँ पे ये 94-95 यूसीस कौन सी हैं? ये सबनाबाद वाली। अच्छा जी, ठीक है। वहाँ पे मियाँ साहब ने कुर्सियाँ भेजी, कुर्सी पे सरदार साहब बैठे, माशाल्लाह उसका वेट भी तो काफ़ी है ना, वो कुर्सी टूट गई। ठीक है। उसी टाइम मियाँ साहब को कॉल की कि मियाँ साहब ये कुर्सियाँ किस तरह की हैं, ये तुम कुर्सियाँ टूट रही हैं, इस तरह लोग गिर जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, यानी कि उनको आगे से बता रहे हैं कि जी ये इस तरह कुर्सियाँ टूट रही हैं, ये इतना ताल्लुक है। ठीक है ना। अब मियाँ साहब, फिर हमारे लिए तो ख्वाजा साहब ही अच्छे हुए ना, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ सुनी गई है। इमरान नज़ीर जी, उन्होंने जूते लिए नहीं लिए, उन पे इल्जाम आया, उन्होंने फौरी एक्शन लिया। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं लानत भेज, मैं वही सर, मैं हम लोग तो पहले इस चीज पे थे। आगे चलें जी। ठीक है। अब ये सुन साहब से राब्ता करवाएं जी, मियां नुमान साहब से। अब ये सुन लें, ये उसका हमसाया है, जिसने सरदार हसनैन अली घुम्मन साहब का भी लुटिया गया। ये देखें, सुन लें। मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टू मरियम नवाज। ओ तेरा भला, ओ एक सेकंड भाई, ये मैं दोबारा से लगाऊंगा। अब तारुफ दें, ये वो कह रहा है मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब। जब उसने मेरी वीडियो देखी, उसने मुझे उसी टाइम कॉल की। वो कहता है कि मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब लगवाना है। गल जी जी, आओ जी सुनते हैं। इसको भी उसने घुम्मन ने बोली, कितने में? 9 लाख में। 9 लाख में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब बंदा लगन लगा है। वाह भाई वाह। मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टू मरियम नवाज, 17वां ग्रेड, 5 के अंदर घर। ठीक है। नीचे मेरे गारंटी, ठीक है, 2 सरकारी पुलिस वाले, और जो वॉकी टोकी सर खुद हाथ में पकड़ते हैं, वो सर ने कहा था कि वो आपके हाथ में भी है, वो आपके हाथ में भी होगा। ठीक है। ये सब चीजों का झांसा दे के कि मैं तेरा कर रहा हूँ, मैंने तो इससे खुद नहीं मांगी। मैं आपको कहूँ, मैंने इजाज का काम ही करवा के देना था। इसने फिर मुझे कहा कि यार तू इजाज, वो इसका कोई कजन था, उसको भी जो है ना नौकरी, उसकी भी वो जो है ना, इसमें पता नहीं, ये कहीं कहानी इजाज की नौकरी से शुरू हुई और बाद में ये भी अंदर आ गया। ये भी बेचारा जो है ना, तू आगे काम करना चाहना है,
कोई, मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, मुझे भी कोई जॉब आप लगवा दो, अगर लगवा सकते हो। मैं कहा थोड़ी बेहतर लगवा दो तो ज्यादा बेहतर है। कहता चल फिर नवियां नौकरियां कड्डियां ने, सीटां वधाइयां ने सैकटरियां दियां, तो सैकटरियों की सीटें वधा के कहता कि जी ये माना तो उसके लिए आम था। मैं तुझे कंफर्म कर देता हूँ, सीएम का सेक्रेटरी साहब का किसी का नाम लिया, हनीफ खान साहब के पैरों को हाथ लगा के मरियम नवाज साहिबा जाती हैं जाती उम्रे से, ते उन्होंने तेरा काम कराया, तो उन्होंने साइन। हनीफ खान साहब कौन है? अब ये वो जाती उम्र होते हैं जी, वो कह रहे हैं कि सीएम साहिबा उनके पैरों को हाथ लगा के जाती हैं। यार क्या क्या मंजन बेचे में, मैं मतलब हैरान हो गया हूं कि, और मैं एक गल तो दसा, तुसी सही लुटी दे रहे, बुरा ना मनाया जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ कसम से मैं अपनी ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ भी यही है, ਜਦੋਂ तक लालची जिंदा ना सर नौसरबाज क्यों भूखा मर जाएगा। सर हम लोगों की क्या रंगीन नौसरबाजी ये गलती है कि 2008 से मोनस लाई साहब हमारे इलाके में खड़े मैं ये तो आवांगा, मेनू ए पहले सुन दो, मंजन पूरा सुन लेने दे मुझे। साइन सुइन करा लेने तो पेपर पूपर मेरे तो ज्यादा बेहतर है। कहता चल फिर नवियां नौकरियां कड्डियां ने, सीटां वधाइयां ने सैकटरियां दियां, तो सैकटरियों की सीटें वधा के कहता कि जी ये अपना उसके अंदर से एक में मैं तुझे कंफर्म कर देता हूँ, हनीफ साहब का किसी का नाम लिया, हनीफ खान साहब के पैरों को हाथ लगा के मरियम नवाज साहिबा जाती हैं जाती उम्रे से, ते उन्होंने तेरा काम कराया, तो उन्होंने साइन सुइन करा लेने, तो पेपर पूपर मेरे से साइन कराए हैं, लेकिन रखे अपने पास ही है, ठीक है। और मुझे खास कहा गया है कि बाजू आंटी को फिलहाल कुछ नहीं बताना, ना तुम्हारी मम्मा ने बताना है। फिर अम्मी को भी यही कहा कि बाजू आंटी को फिलहाल कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है कि वो कहेंगी कि कल को मेरे किसी। ये बाजू आंटी कौन है? इसकी मामा है ना। किसकी? सरदार हसनैन की। सरदार हसनैन घुमन की वालदा भी इस मामले में? वो कह रहा था कि अपनी अम्मी को कह देना कि उनको ना बताएं, कल को वो मेरे पे एतराज करेंगी कि जी मेरे किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं लगाया, उनके बच्चे को क्यों नहीं लगाया। तो मेरे से कर करा के कोई 50,000 60,000 करके मेरे से जब 5 लाख रुपया खाया ना, तब मेरी बात होगी। मैं कहा मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हसनैन भाई, मेरी पसली नहीं है इतनी, आप मुझे पहले बता देते कि इतने पैसे लगने हैं तो शायद मैं आपको मना कर देता। फिर भी कर करा के इसने मुझे कहा कि अब तुम्हारा काम एंडिंग के ऊपर है, 7 लाख रुपया मेरे से ले लिया, ठीक है, बल्कि 9 लाख हो चुका हुआ है। 7 लाख पे मैंने बस की थी, तो 9 लाख रुपया हो गया, तो 9 लाख पे बस करके तो आप कहते हैं अगर कोई पैसा लगेगा मैं खुद जेब से लगा दूंगा, ठीक है, और मैं सारा तुम्हारे साथ जो है वो सिस्टम जो है वो मैं कर लूंगा आगे। तो अब तो तुम्हें 10 तारीख को GOR5 में घर मिलने लगा है, घर की तस्वीरें देखो, तो जाहिर सी बात है तस्वीरें भी दे दी। आगे से हमने कहा चलो यार ठीक है, जो भी है पढ़े लिखे बंदे हैं हम, तो मैंने तो सारे कागज बनवाए, डोमिसाइल बनवाया, अपनी सारी डिग्रियां दी, मेरी तो ग्रेजुएशन है, मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट है हसनैन भाई, अपना सॉरी शहजाद भाई, ठीक है, मेरी तो हर चीज कंप्लीट है। तो मैंने कहा ठीक है मैं डिजर्व करता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने जरा तलक यूज कर लिया, बहुत डिजर्व करता हूँ, कोई नहीं, चलो कल को हम सरकारी घर में बैठे होंगे, लेकिन ये आगे आप देख लो ये क्या सारा उन्होंने मामला चलाया। तो मुझे भी इधर नून लीग मरकजी दफ्तर में एक बार मिला है, 2-3 बार कॉफी शॉपों पे मिला है, उस लड़के को भी कॉफी शॉपों पे मिला है। टोटल मैंने आपको ना ये 2.5 से 3 मिनट के अंदर ये सारी कहानी स्टोरी आपको मैंने सुना दी, ठीक है, कि ये हमारे साथ हुआ। कॉफी शॉपों पे कॉफियां भी पीता आराम से, हम तो भाई समझ के पिलाते रहे। हमने कहा यार बाजू आंटी इतनी अच्छी जानने वाली है, ये भाई इतना अच्छा नून लीग का 15 साल से है, ठीक है, हमें क्या पता था कि भाई ये हरकत करता। ऊपर से हुकूमत भी तो नून लीग की है ना, तो कोटे की नौकरियां नून लीग के पास आती हैं, अंदर खाते सब कुछ चलता है। हमने कहा ठीक है करवा सकता है भाई वो काम, वो करवा रहा है, तो छोड़नी इतनी बड़ी बड़ी। तो उसके बाद फिर एंड के ऊपर इतने भाई जज्बातों से खेला है बंदा, ये हो गया वो हो गया, तुम अफसर हो गए हो तो तू सरकारी नंबर प्लेट गड्डी ते अपनी लुआ ला। मैं कहा मैं कैसे लुआ लूं हसनैन भाई, वो तो जब मिलेगी मुझे तो तब कोई बात करूंगा, मुझे तो पकड़ लेंगे हमें। तो ये सारी बातें करके तो मेरा एट दी एंड ये देख लो आप, ये हाल निकला। इस बंदे का नाम क्या? इस बंदे का नाम मेरे ख्याल अहमद है कि इस तरह करके कोई नाम है। मैं इसको नंबर आपको आमिर भाई को दे देता हूँ, इनसे राब्ता कर लेंगे। इसका नाम अहमद। अच्छा ये हमसाया है इनका? हाँ हमसाया। बाजू आंटी का क्या चक्कर है ये मुझे समझाए। बाजू आंटी हसनैन गुमन की वालदा है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि अगर बाजू आंटी को पता चल गया तो बाजू आंटी ने कहना मेरे किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं लगवाया, सीएम का सेक्रेटरी क्यों नहीं लगवाया। हाँ जी, लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आई। हालांकि हम लोग जानते हैं बाजू आंटी को? मेरी वो माँ है हसनैन गुमन की वालदा को। जाहिर है आप पुराने दोस्त हैं, हम लोग बड़े ही उनके पास हुए हैं। हाँ। हमें उनपे कोई गिला नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि उनको ये पूछना चाहिए था कि यार तू कहाँ से लेके आता था। आप जानते हैं बाजू आंटी को? मैं सर उन्हें लिया सी मास्क तो मैं देखा
ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮੈਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਸਨੈਨ ਗੁੰਮਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਯਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਲੇ ਚੋਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਸਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਟਿਆਂ 'ਚ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਨੇ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨੈਨ ਗੁੰਮਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੇਦੀ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਗੁਲਬਰਗੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗਲ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਡੂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਇਆ ਲੱਡੂ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਾਪੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ 4 ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, 4 ਹੀ। ਕਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾ ਵੀ ਆਈ ਏ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਗੁੰਮਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈਟਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੰਦੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ। ਸੁਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਡੀਓ ਹੈ? ਆਡੀਓ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ। खोली यार। हलवा है, हलवा ये केस में आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे समझ मैं शुरू तो ला ला। ए कौन खातून है? ए जी उनकी वालदा है, हसनैन गुम्मन दी वालदा। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान की हाल है जी अल्लाह पास इमरान। हाँ जी, अच्छा इमरान तू ऐसा करना और यासर कहना लेटर दे जाना ते मेडिकल करवा लेंगे ना, तो फिर गल कर, ठीक है? तू ने लेटर मेरा पुत्र दे जा मैनू, तो मैं भी घर मेरे नाल बोलदा पिया, कहंदा मामा मैं 5 लाख रुपया, मैं तो 4 दिन हो गए, मैं जलालत में मेरी कमेटी पई सी, मेरे देह चो निकल गया कि कल 20 तरीक है, मैं कल कमेटी देनी थी मैनू ये सी, मैं कहा तुसीं आओगे दोगे पैसे, मैं अगे दे देवांगी। हुण मैनू बोली जाने, कहंदा मामा हुण मैनू पहली दी पता नहीं की, तू इंज कर मेरा पुत्र तू ना वो लेटर दे के जा, ये जेडे बड़े सियाने लोग ने इन्हां को पहले मेडिकल करा लेना ते फिर तुहानू लेटर मिल जाणगे, ठीक है ना? मैं ट्यूशन पढ़ के ते मां जी बच्चे ट्यूशन पढ़ के ना मेरा पुत्र मैनू लेटर दे के जा, अगों अपने बंदियां नूं कौन को तुसीं मेडिकल जो करवाना है ना, जो तुहाडे को पैसे होंगे फिर उदों तुहानू लेटर भी मिल जाणगे। वो लेटर मेरे कोल ने, ये तेरी अमानत है, ठीक है? ये तू मेरा पुत्र मैनू पैसे देने ने ते कि नाल लंदा तुसीं अपने लेटर लेके जाने ने। मैनू वो बाहर बैठा सी ते कहंदा मामा मैं तुहाडे कहते दे दिता है, मैं कहा लेटर मैं कहा दे के जाए, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੋ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਲੈ। ओके जी अल्लाह, ठीक है ना? चल वो तो कह रहे नौकरी लग चली है, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਚਲੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਲੁਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਸਾਲ ਤੇ ਛੋਟਾ। ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा ذاتی یہ بلیو ہے کہ دا ڈے پنجاب گورنمنٹ اس معاملے کی اونرشپ لے لے گی، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں درست کیسے ہوتی ہیں۔ ہمیں روتے دھوتے لٹکتے گرتے پڑتے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اونرشپ لے لے۔ اگر ہم اس پوائنٹ تک پہنچ گئے تو مجھے یقین ہے کہ بہتر لوگ بھی سسٹم میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کرم کرے گا۔ بہرحال جی آپ بات مکمل کر لیں۔ دیکھو خواجہ عمران عزیز صاحب دا نام میں تادی کہہ رہا ہوں، انہاں اسے لے اپنا چکی نواز تے کی گل ملک صاحب صاحب دے کرنا چ نہیں گل گئی، یا حافظ نعمان صاحب دے کرنا چ نہیں گل گئی؟ نہیں، اسی تو رابطے بھی کر رہے ہیں، تو بار بار رابطے بھی کر رہے ہیں۔ ہماری تو سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تھوڑا سا اس معاملے کو ذرا دیکھ لیں، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو۔ نہیں، ان تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ میں ایک نااہل سی ایم نہیں سمجھتا۔ نہیں دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریسپانسبل خاتون، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2008 سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس ٹائم مونس لائی ہمارے علاقے میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا جس بندے نے جس نوکری پہ لگنا ہے لگ جائیں، خدا کی قسم، جس بندے نے جو دی نوکری پہ لگنا ہے جا کے کھڑا ہو جائے۔ ایم این اے کی وہ سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی یہ مسلم لیگ نون کو جو ہے نا سپورٹ کی۔ واہ، کیسی بات ہے، جس بندے نے جس نوکری پہ کھڑا ہونا ہو جائے۔ 10 دن ہو گئے نے انہیں وہ لڈو ڈرائیور نو آگا پیچھے، ہاں اس کی بھی ریکارڈنگ ہے، اس کے گھر والوں کو مجھے فون آ گیا۔ کیا جی دکھائیں، لڈو ڈرائیور کے گھر والوں کو وہ کیا کہتے جی آپ نے ہمارا بچہ وہ جو ہے نا اغوا کر لیا ہے۔ ہاں میں کہ جی ہمارا کیا لنک ہے؟ جی وہ باہر گیا تھا بیلنس کروانے کے لیے، تو میں کہ جی وہ اپنا فون گھر چھوڑ کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں جی نہیں، میں کیا ان کے مالکوں سے پوچھے، کیونکہ بات اتنی ہائی الرٹ ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا رابطے میں ہوگا، تو اس کو اس نے پکڑ لیا کسی نے، کہتا جی وہ نہیں ہم لوگوں نے آپ پہ پرچہ کروانا ہے۔ میں کہ اچھا جی شہزاد تے ہی ایلی گئے جی تسی دا بندہ ہوا کیتا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، پھر سننے چ بھی آیا ہے کہ ایندے گھر دے بھی ریٹر کیتی ہے کدے کورٹ وچ کہ جی تھاڈا بندہ، ہاں جی اس کے بھائی اس حسنین گھمن کی بھی ریٹ دائر کی ہوئی ہے، تھانے نصیر آباد میں پڑی ہوئی ہے۔ سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ صبح ہی پکڑا جائے اگر تھانہ نصیر آباد کا ایس ایچ او ایکشن لے لے۔ 16 تاریخ والے دن جس دن میں درخواست دے کے آیا تھا نا، اس صاحب کو میں نے کہا تھا، میں کہا سر وہ گھر پہ ہے یار، وہ رکھ تو آپ ادھر بیٹھے، میں کر رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے سامنے ان کے سامنے فون آ رہا تھا اس کے بھائی کا، میں کہا سر یہ اس کے بھائی کے فون آ رہے ہیں، وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، آپ درخواست لکھوائیں، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ ایسے صاحب کا نام کیا ہے؟ طیب سرفراز صاحب۔ طیب سرفراز صاحب، بھائی یہ اگر جو بات یہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ گناہ بے لذت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لڈو کے گھر والوں۔ بہرحال جی میں پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے نمبر سے فون کیتا ہے کہ تسی پریشان نہ ہو، یہ اسی نو 20-25 منٹاں وچ چھڈ جاواں گے، یہ مالکاں نو بنا دے گا، اسی اینو چھڈ دیاں گے۔ اچھا ہن یہ بھی مالک دے متھے نہ لگن، اچھا تے او اپنے اتنے بیٹھ رہے، تسی اپنے جتنے مرضی جد فون نہیں چکیا یا مکاری نہیں چکیا، پھر انہوں کو بڑھا کے تھوڑی لے جی۔ بھائی صاحب ساڈا وہ سن لو نا، میری بھی سن لو نا ہن سر، میرا میری گل کوئی نہیں، پھر میں تیری گل ساری کوئی بھی نہیں چکیا، مشتاق نے نہیں چکیا، پھر وہ تیسرا بندہ کہڑا جڑا وہ نہیں جا سکتا، جڑا مالکاں نال پھردا رہیا ہونا انہوں پوچھو، مالکاں نال پھردا رہیا۔ آہو تے جنہاں کو کام کردا انہاں نوں پوچھو، ساڈا موسم نال لنک ہی کوئی نہیں ہے، اسی پرچہ کرایا حسنین گھمن تے، ٹھیک ہے، سانوں ایندے نے بیچارے نال کی کروا کے اسی ایندے کو کی لینا، اینے تھوڑی لینے پیسے۔ بہرحال جی پنجاب گورنمنٹ سے ایک بار پھر دستبستہ درخواست ہے کہ ہم اس بوند کا کردار ادا کر رہے ہیں جو ٹپ 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 گر رہی ہے، شاید یہ رشوت ستانی کا پتھر جو ہے یہ ایک دن ٹوٹ جائے، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو یقین مانیے گا اس کے بینیفیشریز صرف یہ معاشرہ نہیں ہوگا، آپ لوگ بھی ہوں گے۔ اور اگر یہ نہ ٹوٹا، اصل بات یہ، اور اگر یہ نہ ٹوٹا تو معاشرہ اسے جوجھ کر شاید بچ جائے گا، آپ نہیں بچ پائیں گے۔ خاص طور پہ وہ تمام لوگ جن کے نام اس نیکسس میں
दुरुस्त या गलत आ रहे हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस से मैं क्या तवक्को लगाऊं? आपकी जिम्मेदारी इसको अदा करें, नहीं करेंगे हम रिकॉल करवाते रहेंगे। बाकी सोने रब तो डाडा तो है कोई नहीं। तो जे तुसीं तय कर लिया कि तुसीं सोने रब तो डाडे हो गए हो, थोड़े चो कोई एक भी हो गया है, तो मेरा भरा गलत सोच बैठे जे, परेशानी उठाओगे। अस्सलाम वालेकुम।